Hello and welcome to Fair and Square, our weekly show where we speak to well-known personalities. Last week, we had spoken to retired Lieutenant General Kuldeep Singh Barad, who carried out Operation Blue Star way back in June 1984 in the Golden Temple complex in Amritsar. This week, we speak to retired Major General J.S. Jamwal, who was then the garrison commander, who was then commanding 15 Division in Amritsar. We talked to him today about his recollections of the event 28 years ago. Let's see what he has to say. Welcome to the show, General Jamwal. आपका एग्जैक्टली जनरल जमवाल ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या रोल था? मेरा रोल था टू प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल बॉर्डर. मेरे ट्रूप्स जो थे वो बॉर्डर के ऊपर थे एंड माय कमांड वाज कमांडिंग दोज ट्रूप्स सो दैट पाकिस्तान और एनी other troops don't enter the sphere and interfere with the work that is being carried out in the Golden Temple. जनरल जमवाल 1983-84 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि इतने तकलीफ जरूर होनी है. और इतने तक उसने कहा कि शायद हिंदू तो सिख अलग-अलग हो जाने तो ये चलना नहीं है. I felt bad that he said that, but he did say that. So since you were based in Amritsar, you were the division commander. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ 9 ਡਿਵ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ कि ਅਸੀਂ नहीं करना है, अगर करे तो आर्मी करे नहीं तो ਅਸੀਂ नहीं करना है. जितनी भी पुलिस फोर्सेस थी उन्होंने सारिया ने जवाब दे दिता. सो उसके बाद हुक्म दिता मिसेस गांधी ने सुंदर जी नू. उसने सुंदर जी नू खुद बुलाया कि मैं चाहनी है कि तू ये ऑपरेशन कंडक्ट करें. और सुंदर जी की मर्जी सी किनू लगाना है. इस वास्ते ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ. So are you suggesting that maybe the then army chief General Vaidya was bypassed and Sundar ji was directly called by Mrs. Gandhi? He was bypassed. He was bypassed and Sundar ji was told directly by How are you saying that? I know it. I know it. So does it mean that General Barad was General Sundar ji's choice to carry out the operation? बेसिकली मेरा जॉब ज़्यादा था बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि मेरे जो ट्रूप्स थे बॉर्डर के ऊपर थे, तो इसलिए शायद मुझे वो लगाना भी नहीं चाहते थे इस काम के लिए. तो दैट इज़ वाई प्रॉब्ली बरार वाज इंडिपेंडेंट पर्सन. ही डिडंट हैव टू डू एनीथिंग. ही डिडंट हैव टू लुक आफ्टर एनी बॉर्डर. सो मैं पूरे बॉर्डर की जिम्मेवारी थी, इसलिए शायद मुझे उसमें इस तरफ नहीं लगाया. When did you know that 9 Div under General Barad was actually moving into Amritsar to carry out the operation? एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन वी केम टू नो क्वाइट अर्ली. ये जो ऑपरेशन किया गया ये तो वी वर ऑन एन एक्सरसाइज. और उधर सुंदर जी ने कहा कि वी ऑल हैव टू गो बैक बिकॉज समथिंग एल्स इज कमिंग अप. तो उस जगह पे उसने बुलबुल बरार को भी हिंट कर दिया कि शायद यू विल बी लुकिंग आफ्टर दैट ऑपरेशन. ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? 10-15 दिन पहले होने इसको ऑपरेशन को पहले समझो मई दे एंड समझ लो, मई दे एंड या मई दे मिडल. ਔਰ 9 ਦਿਵ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਦਿਵ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸੀ. ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੇਰੀ थी, एक बटालियन किसी और ब्रिगेड दी थी. Those troops were not 9 Div troops as it is. He was the Joshi was 9 Div, but जो troops थे वो सभी 9 Div के नहीं थे. जो
एक्चुअल बटालियन कमांडर इसने सिलेक्ट किया था वो 9 देव का था, बाकी तो जो अदर्स थे वो और डिविजन्स के थे। आप कह रहे हैं ब्रिगेड कमांडर जो बटालियन कमांडर्स, ओके, ये ही वाज कमांडिंग द जोशी आर्मी कमांड, द डिविजनल कमांडर वाज कमांडिंग ऑल द 3 बटालियन टुगेदर। ब्रिगेड कमांडर कोई नहीं था इन्वॉल्व। So you mean the division commander was directly commanding all 3 battalions that he had deployed there, and also the 4th battalion that was my battalion, जो कि reserve battalion थी। Since you were the GOC of the division in Amritsar, looking back, do you think Operation Blue Star was a well thought out operation? It was very badly thought out operation. As a matter of fact, मुझे ये पूछ नहीं रहे थे कुछ भी, लेकिन मैंने उसी वक्त जनरल दयाल को बोला कि आपने बहुत जबरदस्त गलत किया है, ये काम जो कर रहे हो बहुत गलत काम कर रहे हो। इसने बोला, पंजाबी में बोला उसको, यू थिंक सो, की गल की करना चाहिए सी। आई सेड द डायरेक्शन इन विच दे आर एमिंग द फायर, उसी डायरेक्शन से आप जा रहे हो, तो हाउ डू यू थिंक यू विल सक्सीड। ये मैंने जनरल दयाल को खुद ऑन द लास्ट डे बोला। इसने कहा डू समथिंग नाउ। आई सेड आज आप शाम को जा रहे हो, आप दोपहर को जा रहे हो, तो अभी मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ। ही सेड डू समथिंग। देन ओनली आई सजेस्टेड दैट कम से कम रिजर्व तो रख दो। आपने कोई रिजर्व ही नहीं रखा है, आपने सिर्फ जो जिनको टास्क दिया उनको दे दिया और कोई रिजर्व नहीं रखा। If it operation fails, then who will take the action then? And then he said, अच्छा 2 कंपनियां आप अपनी लगा लो। That is how my 2 companies got involved. तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन था उसमें आप उसकी प्लानिंग में आप इन्वॉल्व थे, आपको बताया गया था? मुझे कुछ भी पूछा तक नहीं गया। जो पूछना चाहते थे वो शायद पूछ लिया होगा, बाकी ज्यादा तो ये आपको कैसे मालूम था कि ये ऑपरेशन ऐसे कर रहे हैं और इसमें रिजर्व नहीं रखा और ये जहां से फायर आ रहा है? एंड में जब ब्रीफिंग करने लगे तो उन्होंने मुझे बतलाया कि ये ऐसे होने वाला। तो उस वक्त इनको मैंने बतलाया कि मुझे लगता है कि आपने कोई रिजर्व नहीं रखा है इसमें। और ये सुंदर जी के सामने दयाल ने बोला कि ही इज सजेस्टिंग दैट सम रिजर्व शुड बी केप्ट। सुंदर जी सेड ऑलराइट, देन ही सेड आई हैव केप्ट 2 कंपनीज ऑफ हिज एज रिजर्व। जनरल जम्वाल, अगर ये टास्क आपको दिया जाता तो आप ये टास्क किस तरीके से करते? इस तरीके से मैं नहीं करता। फर्स्टली देयर आर नंबर ऑफ वेज टू मेक श्योर दैट जो लोग फालतू आए हैं उनको निकाल दिया जाए। आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते थे, उनकी बिजली बंद कर सकते थे, उनका और उनको ऐसे हालात बना देते कि वो उधर रह ही ना सकें। That is the first thing. Secondly, if I had to attack, I wouldn't attack from this direction. I would attack from the western direction. Or सीधे I would have gone to the top of the Golden Temple and from there come down. It is difficult to attack directly जब फायर सामने से आ रहा तो उसको अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने eventually when they said कि रिजर्व रखो 2 कंपनी आपकी, I had to go and guide those companies, कैसे उनको डायरेक्शन देनी। I attacked them from the left. I said I now can't attack from the opposite direction because that would be dangerous. तो उस तरफ से हमने साउथ की तरफ से अटैक किया। मैंने जनरल बराड़ से डिटेल में बात की है इस ऑपरेशन के बारे में। वो कहते हैं कि अगर आप पानी बंद करते, बिजली बंद करते तो इसका खास असर नहीं होना था। एक तो पानी वो सरोवर से ले सकते थे और खाने पीने का सामान गोल्डन टेम्पल में वैसे ही काफी होते क्योंकि वहां 24 घंटे लंगर चलता है। That was his way of thinking. Okay, ठीक है। उसमें भी there is reason in that what he is saying. There is no doubt in that. But that is why the government probably didn't want that to be done, and it would have taken a longer time. And longer time में डेंजर था कि पाकिस्तान कुछ शरारत न शुरू कर दे, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात उसको
बिल्कुल ठीक नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत उस टाइम कुछ मूवमेंट वगैरह ट्रुप्स की थी। सेट के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम मूव कर रहे हैं। आई हैड द सेट ऑन देयर नेट एंड आई कुड मेक आउट दे वर ट्राइंग टू शो अस दैट हम हरकत कर रहे हैं। द एम वाज टू फ्राइटन अस। So in that case, whatever was done, isn't that kind of justified, that if Pakistan was intervening, if the operation would have taken a longer time, then this was the way to do it, the way General Barar did it? बट अटैक डायरेक्टली करना ठीक रहेगा? डायरेक्टली उधर से मालूम है आपको कि उनकी बंदूकें सामने खड़ी हैं, लगी हुई हैं, तो उसको डायरेक्टली करना, अटैक करना ठीक रहेगा? तो आर्मी को ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन थी कि उनके पास क्या वेपन्स है, उनके वेपन्स किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं? वो तो मालूम था, उनको मालूम था। तो उनकी जो जिधर इनकी बैठे हुए थे, इनको ये मालूम था कि उधर बैठे हुए हैं, वो तो मालूम था। और मैंने बोला भी इसको कि ये दिस इज नॉट द डायरेक्शन टू अटैक फ्रॉम, दिस इज द ऑर्डर्स ऑफ द सुंदर जी। आई सेड व्हेन द न्यूज इज there, your neck will be in it and not Sundarji's. These are the words I used for him. So, General Barar क्या कहते? उन्होंने कहा नहीं, I can't help it. General Jamwal, the other fear was that if you lay siege to the complex, thousands of people, thousands of Sikhs, thousands of villagers could have marched from outskirts, from the villages onto the Golden Temple complex, and the army itself would have been under siege. बात यह है कि for the civilians to organize all this is very difficult. And particularly if the army is involved, I don't think they'll dare this. Even the daring Sikhs wouldn't have done that. तो जब ऑपरेशन खत्म हो गया था तो ये सब की बात हुई थी कि ऑपरेशन क्यों ऐसे कंडक्ट किया गया और शायद ऐसे करते तो बेहतर होता? कोई बात नहीं हुई। इतने तक के ऑपरेशन हैड मोर और लेस फेल्ड, एंड उस वक्त इसने कहा कि व्हाट डू आई डू देन, बिकॉज द जो बटालियन कमांडर था गार्ड्स का, उसने कहा कि आई कांट इवन मूव वन पर्सन फॉरवर्ड, द मोमेंट अ पर्सन मूव्स फॉरवर्ड ही गेट्स शॉट। उसने कहा प्लीज फॉर गॉड सेक डू समथिंग, और उस वक्त इसकी बुलबुल बरार की आवाज भी थोड़ी पता लग रहा था कि डर लग रहा है इसको। दैट इज द स्टेज जो मेरा डेप्यूटी जीओसी था, उसने बोला चिक्की टू बुलबुल, हैव यू गॉट सम ऑर्डर्स? उस वक्त इसको याद आया कि ये रिजर्व भी है। यस यस नाउ यू कैरी ऑन। उस वक्त इसने चिक्की को बोला कि अभी ऑपरेशन कैरी करो। दैट इज हाउ द ऑपरेशन सक्सीडेड। It's the reserve battalion that. So that means when the guards were they ran into trouble, so that is the time Chikki intervened and sought directions. Not trouble, serious trouble. They couldn't have gone one step forward. So that is when Chikki Diwan Then intervened. Chikki Diwan rang up. When did you think the things really went wrong, if one can say it? Because moment they started going from this direction, things were going wrong. And they said we are going to take the armored car. वो armored car को भी ले गए, तो that was shot at and he became, वो उधर खड़ा रह गया और बंद हो गया. They used the artillery also, and the shots were going over the head of the Golden Temple and landing in our cantonment. There was a person who died with that, one of the shots that was fired. One of our persons died.